नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। मानसून के पेश नजर शहर में वायरल बीमारियों के फूट पड़ने के बाद बल्दिया अब हरकत में आ गई है। इस सिलसिले में आज बल्दिया के शोबे मेडिकल व हेल्थ के अहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर जेएसएमसी दाना किशोर और एडिशनल कमिश्नर संदीप झा भी शरीक थे। इजलास में मच्छरकश अद्वियात की मुहिम को तेजतर करने की हिदायत दी गई। सड़कों और घरों के सामने पानी जमा होने के नुकसान से आवाम को वाकिफ करवाने शऊर की बेदारी के प्रोग्राम के आगाज की जरूरत पर भी जोर दिया गया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज अपने पार्लिमानी हल्का सिकंदराबाद के तहत आने वाले इलाके कुमारवाड़ी आसिफ नगर का दौरा किया। उन्होंने आवामी मसाइल की समाअत की और उनके हल्का तयक़ुन दिया। बीजेपी के कई कायदीन और कारकुन उनके हमरा थे। जी किशन रेड्डी ने इस मौके पर मकामी लोगों से मुख्तसर खिताब भी किया और बताया कि वो राय दहिंदों के मशकूर हैं जिन्होंने बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर अपने एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकजी काबीना में शमूलियत से रियासत तेलंगाना के साथ इंसाफ किया गया है। वो इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा करते हैं। రాహుల్ గారు వెంకరెడ్డి గారు కరుణాకర్ గారు రాహుల్ గారు భుజంగం గారు ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఉమర్ సంఘం రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షులు జయంతన్న గారు నరసింహరావు గారు ఇంకా ఇతర బస్తీ పెద్దలు పార్టీ నాయకులు ఈ హాల్లో పాల్గొంటున్నటువంటి బస్తీ ప్రముఖులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। మీ అందరి ఆశీస్సులతో మీ అందరి సహకారంతో మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో సికింద్రాబాద్ ఎంపీగా నేను గెలిచి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టాను। నెల రోజులైనా కూడా ఇంకా నేను ఢిల్లీలోనే ఒక స్కూల్కు స్టూడెంట్ ఎట్లా వెళ్తాడో నేను అట్లా హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి పని నేర్చుకుంటున్నాను। ఇంకా అక్కడ అదేవిధంగా మన బస్తీలో కూడా ఒక్కొక్క బస్తీ ఆదివారం శనివారం ఈ రకంగా తిరిగేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాను। హోమ్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా పెద్ద పని నాకు నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చారు, అమిత్ షా గారి చేతి కింద। అందులో జమ్మూ కాశ్మీరు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలు కానీ ఈశాన్య రాష్ట్రాల వ్యవహారాలు కానీ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం కానీ లేక ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కానీ ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ కానీ ఈ రకంగా అనేక విషయాలు ఉన్నాయి। ఇక్కడ అవసరం లేదు, అనేక వివరాలలో పని చేయాల్సింది కాబట్టి పని నేర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను। కాబట్టి నేను వెంటనే అన్ని బస్తీల్లో రాలేకపోయాను, అందుకే ఆలస్యమైంది। 26వ తేదీ వరకు ఈ నెల పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఆ కారణంగా కూడా కొంత ఇబ్బంది అవుతూ ఉంది। పార్లమెంట్ సమావేశాలలో హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి బిజినెస్ ప్రశ్నలు జవాబులు బిల్స్ ఇవన్నీ కూడా చర్చించుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే దాని మీద కూడా దృష్టి కేంద్రీకరించాలి। ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మన నాంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో మనమంతా ఇంకా ఐక్యమత్యంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది, మాట్లాడే అవసరం ఉంది। మనకు కొన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలో మెజార్టీ వచ్చింది కాబట్టి మనం గెలిచాము, కానీ ఇక్కడ సుమారు 28,000 ఓట్లు మనకు తక్కువ వచ్చినాయి నాంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ। కాబట్టి అది దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మనం। 28,000 ఓట్లు తక్కువ వచ్చినాయి నాంపల్లిలో। కాబట్టి అందరూ కూడా మరి ఆ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రానున్న రోజుల్లో మన ఐక్యమత్యాన్ని మన బలాన్ని మన యొక్క పోలింగ్ బూత్ కమిటీలను మనం అందరం పెంచుకోవాలి। వచ్చే యొక్క కౌన్సిలర్ ఎలక్షన్స్ అన్నా కొంతమంది కౌన్సిలర్స్ మనం గెలిపించుకోవాలి, లేకపోతే వాళ్ళు మన గురించి పట్టించుకోరు। గెలిచిన వాళ్ళు మీకు తెలుసు ఏ రకంగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం, డ్రైనేజీ ఓవర్ఫ్లో అయినా పట్టించుకోరు, రోడ్డు పడైనా పట్టించుకోరు, కమిటీ లేకపోయినా పట్టించుకోరు, పెన్షన్లు రాకపోయినా పట్టించుకోరు, రేషన్ కార్డు రాకపోయినా పట్టించుకోరు। కాబట్టి కొంతమంది మన కార్పొరేటర్స్ ఇక్కడ గెలిపించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలా। దానికోసం బస్తీ పెద్దలందరూ కూడా పార్టీలకు అతీతంగా ఒకటే ఈ యొక్క కార్పొరేటర్స్ని గెలిపించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలా। నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో మనం దేశాన్ని ముందు తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాము। నేను ఒక రవి చేస్తాను, జమ్మూ కాశ్మీర్ సమస్య ఏదైతున్నదో వచ్చే 5 సంవత్సరాలలో దానికి కొద్దిగా ఒక పరిష్కార మార్గం కనుగొంటామనేటువంటి విశ్వాసం కూడా हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रौडी शीटों की बढ़ती हुई सरगर्मियों और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की गर्ज से गुरुवारी झगड़ों के पस मंजर में हबीबनगर पुलिस स्टेशन के नए इंस्पेक्टर शिवा रेड्डी,
एडिशनल इंस्पेक्टर नरसैया और सब इंस्पेक्टरों की मौजूदगी में इलाके के तमाम बदनाम जमाना रोडी शीटरों को तलब करके उनकी खूब डांट डपट की गई और उसे साफ तौर पर कह दिया गया कि वो अपनी गुंडागर्दी को खत्म कर दें, वरना उनकी खैर नहीं होगी। शिवा रेड्डी ने कहा कि वो पुलिस स्टेशन की हदूद में अमन और अमान चाहते हैं, लेकिन कोई अमन जब्त की सूरत-ए-हाल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा या शरीफ लोगों को तंग करने की शिकायत मिली तो वो कानून का डंडा इस्तेमाल करने में 1 मिनट की भी ताखीर नहीं करेंगे। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि इन गुंडों का ताल्लुक किस सियासी जमात से है या किस जमात की उन्हें सरपरस्ती हासिल है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन पर 2 गुंडों समीर और कलीम के रिश्तेदारों के धरने और हमले के बाद एक नए इंस्पेक्टर का तकर्रुर अमल में लाया गया है। जो रॉडी शीटर्स लाइन हाजिर हुए थे उनमें 41 साला खैसर उर्फ खैसर, 35 साला मोहम्मद यूसुफ अलमारूफ जंगली यूसुफ, 31 साला तबरेज खान, 28 साला मजीद, 27 साला मोहम्मद शकील, 35 साला मोहम्मद लतीफ़, 33 साला मोहम्मद करीम अलमारूफ चोर करीम, 30 साला मोहम्मद समीउद्दीन, 29 साला सैयद उस्मान, 40 साला बंडारू वेंकटेश अलमारूफ बुज्जू और दूसरे शामिल थे। मैं शिवचंद्र है, इंस्पेक्टर हबीबनगर। मैं 3 डेज़ बैक मैं चार्ज लिया ये पुलिस स्टेशन में। वो सीपी साहब, कमिश्नर साहब श्री अंजनी कुमार सर मेरे को ऑर्डर दिया। वो बोले, क्या बोला, वो राउडी शीटरों को ज़्यादा कंट्रोल करना ऐसा बोला मेरे को, इसलिए मैं भिजाया ऐसा बोला वो साहब। मैं आज से पूरा उनका वो 2 डेज़ पूरा उनका रिकॉर्ड देखा मैं, कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन क्या केसेस में उन्होंने अंदर गया, उनका ऊपर में क्या क्या कितना केस है पूरा देखा मेरा। मैं वो रिकॉर्ड का बारे में रिकॉर्ड देखा। पूरा लोगों को आज बुलाए पुलिस स्टेशन को, मेरा एसआई के साथ पूरा बुलाए, बात करे उनसे, उनको काउंसलिंग अच्छी काउंसलिंग करा। 9 बजे के बाद में उन्होंने एरिया में दिखे तो कुछ स्मेल आए तो उनका ऊपर में उनको प्रॉब्लम हो जाते बोला मैं। उनको अच्छी जिंदगी ऐसा अच्छी करना ऐसा बोला मैं। उनका बच्चों को अच्छी पढ़ो बोल के बोला, अच्छी पढ़ने का उनको एंकरेज करो ऐसा बोल के बोला मैं। वो इसलिए मैं उनको पूरा लोगों को वो हबीबनगर पुलिस स्टेशन को बुलाए। आज से कोई गलत करे तो राउडी शीटरों वाला, कम्युनल राउडी शीटरों वाला कोई गलत करे तो किसको भी नहीं छोड़ते, उनको अंदर भिजाए तक मैं नहीं सो जाते। ऐसा मैं छोड़ने को आया, अंदर छोड़ने को आया। कोई गलत करे तो मैं छोड़ने को नहीं आते, वैसा अंदर भिजाते। टोटल राउडी शीटर्स आज 17 राउडी शीटर्स पुलिस स्टेशन को आ गए। उसमें वो 9 राउडी शीटरों को एक्टिव ऐसा बोल के पूरा उनको भी लगाए। उनकी बोला क्या क्या है, वो कैसा है, वो क्या करना, कैसा करना, रात में कैसा फिरना, उन्होंने बाहर गए तो कैसा बोलना, क्या बोलना, ऐसा पूरा उनको बोला। उन्होंने कर लेते। उन्होंने कुछ स्मेल आए तो मैं पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मेरा बड़ा ऑफिसरों क्या बोले तो वो बड़ा ऑफिसर के मदद लेके ऐसा करने को मैं रेडी है। टोटल राउडी शीटर्स कितने हैं, समाज कितने हैं टोटल राउडी शीटर्स और 29 मेंबर्स है। उसमें थोड़ी मेंबर वो भी है। 17 राउडी शीटर्स उनमें एक्टिव में उन्होंने पुलिस स्टेशन को आ गया। थोड़ी लोगों को हेल्थ अच्छा नहीं है, वो इसलिए उन्होंने थोड़ा परमिशन लेके ऐसा उन्होंने आया है। 17 राउडी शीटर्स आज पुलिस स्टेशन को आया, उनसे बात करे, उनसे पूरा इंक्वायरी करा, कैसा करा, वो क्या करना, वो कैसा जिंदगी ऐसा लीड करना, ऐसा पूरा बोल दिए उनको। आज से कोई कुछ करे तो कुछ स्मेल आए तो भी उनका ऊपर में पूरा इन्वेस्टिगेशन करके अच्छी सेक्शंस ऐसा लगा के अंदर भी जाते, पीडी एक्ट में भी डालते।
पीडी एक्ट అయినా श्री डीजी साहब अपना वो महेंद्र रेड्डी साहब पीडी एक्ट अच्छी पीडी एक्ट ऐसा पुलिस स्टेशन को अपना हैदराबाद सिटी को लाए। वो पहले नए वो पहले स्नैचिंग्स भी ज़्यादा है, वो अभी स्नैचिंग्स पूरा स्नैचिंग्स हो गया। आज स्नैचिंग्स दिख रही नहीं, वो आज पुलिस स्टेशन अपना पुलिस स्टेशन में ऐसा राउडी शीटरों को भी ऐसा पीडी एक्ट लगाने को मैं रेडी है। वो कर लेते, कुछ उन्होंने गलत करे तो पक्का वो कर लेते। सब एक्टिव राउडी शीटर्स कितने हैं सर? एक्टिव राउडी शीटर 9 राउडी शीटर्स है। क्या नाम है सब उनके? वो उनका थोड़ा कैसर, जंगली यूसुफ, तबरेज, ऐसा लतीफ़ ऐसा बोल के है उनका। अबीब नगर राउडी शीट अबीब नगर पब्लिकों को मैं बोलना क्या, उनसे कुछ उनको थ्रेटन करे तो, उनको कुछ डरा दिए तो मेरा पुलिस स्टेशन को फ्रीली आ जाना, मेरे को फ़ोन में बोल देना, मेरे को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना। उनके पास पूरा कुछ है तो भी मेरे पास आए तो मैं करने का रेडी है। उनको भी वो राउडी शीटर का ऊपर में मैं पिटिशन दिए तो मेरे को बाद में मेरे को प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं सोचना ऐसा, आ जाना पुलिस स्टेशन को, मैं उनका पूरा मैं देख लेता हूँ। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के तमाम 700 वेटरनरी हॉस्पिटल को तरक्की दे रही है और अब तक 642 दवाखानों का काम मुकम्मल हो चुका है। वजीर मौसूफ जिले नलगुंडा के चरलापल्ली में जानवरों के लिए टीका अंदाजी के प्रोग्राम में शिरकत के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने डेयरी फार्मिंग के सनत को फ़रोग देने हुकूमत के मंसूबों का तस्करा किया। इन दोनों वज़रा ने डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी हॉस्पिटल की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया, जिस पर 4 करोड़ रुपये के खर्च आए हैं। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में नाकामी पर खुदकशी करने वाले 27 तलबा के पसमानदागान की इमदाद के लिए TRS और मजलिस को छोड़कर तमाम सियासी जमातों ने आज चारमीनार पर भीख मांगने का दीक्षाना प्रोग्राम शुरू किया। जिन जमातों ने इस प्रोग्राम में शिरकत का ऐलान किया था उनमें कांग्रेस, तेलुगु देशम, CPI, CPIM और तेलंगाना जन समिति शामिल थे। सिकंदराबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और उनके सैकड़ों हामियों को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जबकि वो प्रोग्राम में शिरकत के लिए चारमीनार पहुंचे थे। इन तमाम को बादशाह कंचनबाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। वर्ल्ड साइकिल डे के मौके पर आज JHMC की तरफ से साइकिल रैली मुनज़्ज़म की गई। बंदलागुड़ा में मुनक़िदा एक तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने झंडी दिखाकर साइकिल रैली का इफ्तिताह किया। इस मौके पर JHMC के आला अहदेदार भी मौजूद थे। नागौल के नागार्जुना स्कूल के तलबा तालिबात ने आज स्कूल के रूबरू धरना देते हुए इस स्कूल की दोबारा कुशादगी का मुतालबा किया। 13 जून को स्कूल की एक तालिबा के गिरकर मर जाने के वाक़े के बाद हुक्काम ने इस स्कूल को बंद कर दिया था। इन तलबा और उनके वालिदीन का कहना है कि एक हादसे पर स्कूल को बंद कर देना कोई माने नहीं रखता। काम स्कूल के इंतजामिया के खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी तालीम को मुतासिर नहीं होने देना चाहिए। गच्चीबौली में संध्या कन्वेंशन सेंटर में लगाया गया एक आरजी शेड तेज हवाओं के सबब गिर पड़ा, जबकि वहां
फिल्म स्टार विजय निर्मला की 10वीं के सिलसिले में लंच का एहतमाम किया गया था। इस हादसे में ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ। इंतजामिया ने फौरी मुतबादल इंतजाम कर दिया। इससे कबल संध्या कन्वेंशन सेंटर के अंदरूनी हिस्से में ताज़ियती जलसा भी मुनक्किद हुआ, जिसमें फिल्म स्टारों, सियासतदानों और विजय निर्मला के चाहने वालों की बड़ी तादाद शरीक थी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मरकजी बजट में तेलंगाना को नजरअंदाज कर देने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। लोकसभा में TRS के लीडर नामा नागेश्वरराव ने कहा कि रियासत के आपाशी प्रोजेक्टों को अहमियत नहीं दी गई। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स रियासत भर के आवाम की प्यास बुझाने की खातिर शुरू किए गए हैं। मेदक के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर ने बताया कि मरकजी बजट मायूस कुन रहा, क्योंकि इसमें रियासत के आपाशी प्रोजेक्टों खासकर मशीन भगीरथा का कोई तस्करा नहीं है। हालांकि नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट के लिए 25,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की। उन्होंने सवाल किया कि रकूमत मुख्तस किए बगैर हुकूमत 2024 तक हर घर को पानी फराहम करने के वादे को किस तरह पूरा करेगी। दूसरी तरफ वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने कहा कि मरकजी बजट में रियासत में ट्राइबल यूनिवर्सिटी, कोच फैक्ट्री, स्टील प्लांट के क़याम से मुतालिक कोई बात नहीं कही गई। उन्होंने कहा कि मरकज़ के महसूल में रियासत का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత అత్యధిక మ్యాండేట్ ఇచ్చినప్పుడు భారతదేశ ప్రజలందరికీ కూడా అనుకూలమైన బడ్జెట్ వస్తుంది. అందులో ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే కొత్తగా ఏర్పడ్డటువంటి 6 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మరి అన్ని విధాలు కూడా కొంతవరకన్నా కూడా కొంత ఊరట ఇస్తారు ఈ బడ్జెట్లో అనుకున్నాం. హర్ ఘర్ జల్ నినాదం ఏదైతే చెప్పారో హర్ ఘర్ జల్ అనేది మిషన్ భగీరథతో మొత్తం కూడా ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇచ్చాం. ఇవాళ మీరు ఆ యొక్క అదే పథకాన్ని హర్ ఘర్ జల్ అనే పేరుతోనే మీరు పెట్టారు, చాలా సంతోషం. కనీసం భారతదేశానికి దిక్చూచి లెక్క మా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ యొక్క పథకానికి కనీసం మాకు కూడా ఇది కూడా సెంట్రల్ ఫండ్ ద్వారా కనుక ఒప్పేసుకుంటే చాలా బాగుండేది. ఎందుకంటే ఇవాళ మీరు భారతదేశానికి అందరికి కూడా హర్ ఘర్ జల్ కావాలని చెప్పేసి మీరు పెట్టారు. అదేవిధంగా జలశక్తి మీరు ఏదైతే పెట్టారో కొత్త ఒక మినిస్ట్రీని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మొదటి నుంచి కూడా మేము అంటున్నాం, మా నాయకులు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కేసీఆర్ గారు కూడా ఒకటే చెప్పారు ప్రతిసారి కూడా, కనీసం తాగునీరు, సాగునీరు భారతదేశంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం అని మా స్టేట్లో వీటిని మరి అన్ని విధాలు కూడా ముందుకు తీసుకొచ్చాం. ఇవాళ మీరు బడ్జెట్లో కూడా అదే చెప్పిన మాట వాస్తవమే. చెప్పినప్పుడు కనీసం మేమేదైతే టేకప్ చేసినట్టు ప్రాజెక్టులకి కొంత రాయితీ ఇచ్చుంటే బాగుండేది. అసంటి కూడా ఇవ్వలేదు. మా కొత్త రాష్ట్రానికి రావటటువంటి ప్రాజెక్టులు కొన్ని అనౌన్స్ చేస్తానని అనుకున్నాం. వాటి మటుకు ఎలాంటివి కూడా అనౌన్స్ చేయకపోగా ఏదేమైనా కూడా ఓవరాల్గా మా రాష్ట్రానికి సంబంధించినంత వరకు ఎన్నో ప్రత్యేకత ఉంటుందని మేము ఎంతో ఆశపడ్డాం. అసంటి కొద్దిగా నిరాశపరిచిన మాట. अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं।
आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। जहीराबाद में ईदगाह के करीब ट्रैफिक के एक दिलखराश हादसे में 2 अफराद बरसर मौका हलाक और दूसरे 4 अफराद जख्मी हो गए। महलुकिन की शिनाख्त मोहम्मद जावेद और मोहम्मद अहमद की हैसियत से की गई। जख्मियों को सरकारी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बताया जाता है कि एक तकरीब में शिरकत के बाद ये सब एक स्कॉर्पियो कार में कौमी शाहराह पर वाक़ टी स्टॉल पर चाय पीने के लिए गए थे। स्कॉर्पियो वहां खड़ी हुई एक लारी में घुस गई। पुलिस जहीराबाद मसरूफ़ तहकीकात है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह उस वक्त सनसनी की लहर दौड़ गई जब एक 24 साल नौजवान के वी विश्वनाथन ने चेन्नई जाने वाली इंडिगो और ट्रू जेट फ्लाइट में बम रखे जाने की इत्तला दी। एयरपोर्ट पर तैनात CISF के अमले ने फौरी हरकत में आते हुए इन दोनों फ्लाइट्स की तलाशी ली, जिस पर यह इत्तला झूठी साबित हुई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस प्रकाश रेड्डी ने बताया कि चेन्नई के मुतवत्तिन विश्वनाथन को, जो सिकंदराबाद की कंपनी में काम करता है, हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ जारी है। इब्तदाई पूछताछ में उसने बताया कि वो हालत नशे में था और आशिकी में नाकामी के बाद डिप्रेशन का शिकार है। वो ट्रू जेट की फ्लाइट के जरिए ही चेन्नई से हैदराबाद पहुंचा था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में एक केस दर्ज रजिस्टर कर लिया गया है और आगे की तहकीकात जारी है। कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर से ताल्लुक रखने वाले 11 अरकान असेंबली के इस्तीफों की पेशकशी के बाद रियासत में एक जबरदस्त सियासी बहरान आ गया है। अरकान असेंबली जिस वक्त विधानसभा पहुंचे तो स्पीकर मौजूद नहीं थे और उन्होंने काफी देर तक उनका इंतजार करने के बाद उनके सेक्रेटरी को अपने इस्तीफे सौंप दिए। बाद अरकान असेंबली राजभवन भी पहुंच गए ताकि गवर्नर से मुलाकात करके उन्हें सूरत हाल से आगाह किया जा सके। जिन अरकान असेंबली ने अपने इस्तीफे पेश किए उनमें कांग्रेस के M महेश, BC पाटिल, रमेश झरकोली, H शिवाराम, ST सोमाशेखर, प्रताप गौड़ा, B बसवराज, मनी रत्ना। जनता दल के अरकान असेंबली में KH विश्वनाथ, नारायण गौड़ा और दूसरे शामिल हैं। साबिक वजीर रामलिंगा रेड्डी भी अपने मजीद 4 अरकान असेंबली के साथ विधानसभा पहुंचे। हालात की संगीनी को महसूस करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर G परमेश्वर और रियासती वजीर शिव कुमार ने कांग्रेसी अरकान असेंबली और कारपोरेटरों का एक हंगामी इजलास शाम 6 बजे तलब किया है। ये सारा मामला उस वक्त हो रहा है जबकि चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी अमेरिका के दौरे पर हैं और वो कल सुबह बेंगलुरु वापस होने वाले। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लोकसभा के लिए अपने इंतखाब के बाद आज दूसरी मरतबा हिंदुओं के इस मशहूर और तारीखी मुक़द्दस शहर का दौरा किया। उन्होंने भारतीय जनसंघ के बानी श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती की मुनासिबत से बीजेपी की रुकन साजी की मुल्कगीर मुहिम का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के ख्वाहिशमंदों के लिए टोल फ्री नंबर 8980808080 भी जारी किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो बीजेपी की कामयाबियों और कारनामों के अलावा 5 ट्रिलियन की मईशत के निशाने से मुतालिक मंसूबों को घर घर जाकर आवाम तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि यह काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हर हिंदुस्तानी इसके लिए जद्दोजहद करेगा। इस जलसे से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी खिताब किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश के सहप्रभारी माननीय श्री सुनील ओझा जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के अंदर जिन्होंने पूरे देश के 130 करोड़ जनता के सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया है, भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ
आगे बढ़ाने का कार्य किया है और काशी को एक बार पुनः वैश्विक मंच पर ले जाकर के एक गौरवशाली स्थान प्रदान किया है। भारत माता के ऐसे महान सपूत, काशी के यशस्वी सांसद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सब के लिए गौरव की बात है कि यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है और काशी को प्राप्त हुआ है। काशी हमारी सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी का प्रतिनिधित्व देश की संसद में करते हैं। राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के शुभारंभ के लिए आज स्वयं काशी में पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात पर गौरव की अनुभूति करता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुआ। आजादी के बाद अपने संस्थापकों के उन मूल्यों, उन आदर्शों से बिना डिगे, बिना हटे भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं का पालन करते हुए कैसे लोकतंत्र आगे बढ़ सकता है, फल सकता है, फूल सकता है, आगे बढ़ सकता है, उन सभी मूल्यों और आदर्शों को पूरी तरह आत्मसात करते हुए कैसे आम जनमानस का विश्वास का प्रतीक बना जा सकता है। लगातार दूसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर, अपने बल पर, अपनी उपलब्धियों के बल पर 303 सीट प्राप्त होना और सहयोगियों के साथ 350 का आंकड़ा पार करना, ये सचमुच संगठन के प्रति एक निष्ठा और विचारधारा को, अपने उन मूल्यों और आदर्शों के प्रति उन प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने का ही प्रतिफल है कि जब चुनाव में पिछले सदस्यता अभियान के समय जब भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने का जो मार्गदर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और संगठन ने एकनिष्ठ होकर के सभी कार्यकर्ताओं को इस अभियान के साथ जोड़ा था, तो आज वह सब कुछ संभव हो पाया है जिसके लिए कभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में तमाम प्रकार का प्रश्न लोग खड़ा करते थे। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और वह मुमकिन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा नेता है जिन्होंने परिश्रम भी किया, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर आम जनमानस के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य भी किया और भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित भी करके दूसरी बार पहले से अधिक समर्थन के साथ आकर के अपनी सत्ता को पुनः इस देश की आम जन की आकांक्षाओं का प्रतीक बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाया है। आज जब सदस्यता अभियान का यह कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ हो रहा है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस पावन दिवस पर भी उस महामानव को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए इस देश के लिए, इस समाज के लिए जो मूल्य और जो आदर्श इन महापुरुषों ने रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी
आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस तेजी के साथ हर एक गांव, गरीब, किसान, नौजवान, समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, यह सदस्यता अभियान एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के साथ इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने के साथ ही एक बार पुनः हमारी आगे की कार्य योजना को संगठन की दृष्टि से सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफल होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय जेपी नड्डा जी का और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए आप सभी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।